Welcome. And today is a very special day. So I request you to kindly mute yourself so that we can avoid disruptions. And as usual, we are going to start our webinar with an invocation of a poem written by very famous poet Gopal Das Neeraj. So let me just share the screen. आगंतुकों का स्वाध्याय सहचक्र परिवार की तरफ से हम सबका आभार प्रकट करते हैं और स्वागत करते हैं। इस आभासीय संगोष्ठी के उपलक्ष्य में गोपाल दास नीरज द्वारा रचित एक रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जान पाए निशान पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, कि जब तक लहू के लिए प्यासी प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मगर दीप्ति की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों न आए नखत सब नयन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेंगे तभी यह अंधेरे घिरे अब, स्वयं धर्म मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। धन्यवाद। Thank you so much for your kind support and kind generosity. And thank you so much, Dr. Devendra Kumar Tiwari, for singing this beautiful song, beautiful poem written by Gopal Das Neeraj. I, Randhir Kumar Gautam, on behalf of Swadhyay Sahchakra family, I welcome you. Today is a very special day. Today we are going to talk in a very different sense, a very different topic, that is Odia Sahitya Chitranjan Das, Odia Sahityakar Chitranjan Das, और हिंदी रचनाकार
कुलवीर नाथ रॉय की साहित्यिक का तुलनात्मक अध्ययन। I welcome Chief Guest, Chief Speaker, Professor Ravindranath Srivastava, Parichay Das, poet, writer, and critic from Nalanda University, Nalanda, and also welcome Swadhyay Sahachakra family member, knowledge seeker, and audience on Facebook and Zoom platform. Before the beginning of the session, let me give a brief introduction to our Swadhyay Sahachakra. Swadhyay Sahachakra is an initiative of studying and learning together self, culture, society, and the world. Friends associated with this are eager to walk and mediate with new horizons of thinking and new movements of social and cultural change at work in our contemporary world. We study seekers such as Sri Aurobindo, Mahatma Gandhi, Chittaranjan Das, a seeker, a creative thinker from Odisha, and many others from around the world. We also present our own writing and reflects upon our creativity together. We also invite seekers from different fields of life to share with us their lives, vision, sadhana, and struggle for creating a world of beauty, dignity, and dialogue. We meet every Sunday or sometimes on Wednesday. We are now nurturing this uh, effort in collaboration with School of Humanities and Social Science of Raffles University. Swadhyay Sahachakra is an initiative of Viswanidhan Center for Asian Blossoming. Swadhyay Sahachakra nurtures Swadhyay Sahachakra Chittaranjan Memorial Lecture. Let me give a brief introduction to a kind of a biographical sketch of Chittaranjan Das. Chittaranjan Das is a creative seeker and transformative thinker and activist in our times, who has written and worked on many aspects of human life, education, philosophy, literature, and integral human development and social transformation. Das was born on 3rd October 1923 in Bhagalpur in undivided district of Cuttack in Odisha, India, and left his mortal body on January 16, 2011. Thus is known to many of his friends, courtiers, travelers, and concerned publics at large in Odisha and India as Chittabhai. Chittabhai has initiated many creative experiments. He founded Jivana Vidyalaya, School of Life in Champati Munda in the 1950. He was a pioneer in integral education movement of Odisha and transformed major work and translated many major works of Sir Aurobindo and Mother Teresa. He nurtured both Agragami and Pallava creative efforts in education and tribal development in Odisha. He wrote and translated more than 250 books, majority of them being in Odia and some of these in English. So with this brief introduction, now I would like to invite Professor Anand Kumar Giri sir to kindly moderate today's session. Sir, over to you. Namaskar, Jai Shri Krishna, Sat Shri Akal, Salam Alaikum, and happy Deepavali, happy dance of light with all of us. हमारे जो आलोक का नृत्य हमारे साथ बह जाए और हम आलोक के साथ नृत्य करने लगे, वो एक बहुत हमारे लिए एक आलोक का इवनिंग है, संध्या है आज। और आज 3rd नवंबर और हमारे जो तिथि के अनुसार हमारे चित्त भाई का आज जन्मदिन है। So it is so lovely that we are feeling his presence, we are feeling his birth on this day with this Chittaranjan Das Centenary Memorial Lecture. And how lovely, इतना प्यारा है जो हमारे हिंदी थोड़ा इनके पंख लगने बाकी है, तो हमारे इतना आनंद और आशीर्वाद का विषय है जब भाई हमारे साथ हमारे प्रिय परिचय भाई है। और प्रिय परिचय भाई एक साधक है,
और जैसे कबीर ने बोला, कबीर खड़ा बाजार में, और जिसके बारे में हमारे चित्त भाई का एक प्रबंध है, कबीर खड़ा बाजार में, और हमारे परिचय भाई का एक कविता का पुस्तक का नाम है ढाई अक्षर का। तो परिचय भाई एक परिव्राजक है, एक साधक है, कवि है, और चिंतन के धारा में इतने गंभीर से, आपको याद होगा कि कुछ पढ़ने पहले परिचय भाई हमको कबीरदास और रायदेस के बारे में बताते थे। इतना जो हृदय का, जो सागर का इतना गंभीर से जो रत्न वो ले आते हैं, और इतना मेडिटेटिव वो चिंतन करते हैं। और चित्त भाई का जैसे पाथ ऑफ थिंकिंग, जर्नी विद चित्त भाई पाथ ऑफ थिंकिंग, Chitta Bhai has spoken deeply about literature, about poetry, about criticism. One of the books of Chitta Bhai का एक किताब है चित विस्तार। इसका मतलब है कि हमारे चित कैसे विस्तार बने। इनका प्रारंभ है, वो लिखते हैं कि पहले इसको चित विलास बोलते जाते थे, लग्जरी ऑफ द माइंड और एंटरटेनमेंट ऑफ द माइंड, हम इसको अब चित विस्तार बोलेंगे, इसको हम एक्सपांशन ऑफ माइंड बोलेंगे। विस्तारକୁ ହିଁ ଅସଲ ବିଳାସ ବୋଲି ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଏ, ସେଇଟା ସତକୁ ସତ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ। विस्तार, that is expansion, is real enjoyment. So it is in that spirit आज हमारे प्रिय परिचय भाई प्रोफेसर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, वो हमको चित्त भाई का जो साहित्य का यात्रा और कुबेरनाथ राय दोनों को एक विस्तार के ढांचे में हमारे साथ पठन करेंगे। चित्त भाई साहित्य लिखते हैं, मगर वो हर टाइम हमको याद दिलाते थे, देखो भाई, साहित्य मानव का एक पथ है, मगर मानव इसका मूल में है। इसीलिए चित्त भाई जो साहित्यिक अपना को इतना बड़ा मानते थे कि हम एक अलग पंथी का है और कभी एक अलग किस्म का है, इनको वो भारी वो इनको वो क्वेश्चन करते थे। जैसे इनके एक प्रबंध का नाम है कबीर हृदय प्रशस्त। It means the heart of the poet is wide, and the implication is that his poet's heart is only wide, but about everybody's heart. And he says that those people who write literature, they have a tendency to glorify themselves, that हमारे हृदय बहुत बड़ा व्याप्त है, और इसमें वो बोलते हैं जो कवि है इनके अंदर ऐसे भावना आ जाते हैं जरूर इनका कोई स्पेशल हाथ है। तो चित्त भाई हर टाइम क्वेश्चन करते थे, साथ में हमारे हाथ पकड़कर, हम इनके हाथ पकड़कर क्वेश्चन करते थे, एक नई सपना देखते थे और समीक्षा करते थे। सो आज हमारे परम आनंद और सौभाग्य का मुहूर्त है। हमारे प्रिय मित्र, सहयात्री, सहचिंतक और परिचय भाई का उड़िया साहित्य के साथ गंभीर प्रेम का यात्रा है। हमारे प्रिय कवि और लेखक चिंतक सीताकांत बाबू, सीताकांत महापात्र के बारे में हमारे भाई परिचय कबीर से रचना प्रस्तुत किए हैं। सो परिचय भाई प्लीज। आप अनम्यूट कर दीजिए, परिचय भाई अनम्यूट कर दीजिए, आप आपका म्यूटेड है। बहुत साधुवाद और आभार और हृदय से कृतज्ञता अनंत भाई यानी प्रोफेसर अनंत कुमार गिरी जी, जो समाज शास्त्र के जाने माने देश के विद्वान हैं, साथ ही रणवीर जी, मीनाती जी और स्वाध्याय मंडल के सारे जो हमारे सदस्य हैं, साथ ही देश विदेश में जो मुझे सुन रहे हैं, सबके प्रति अत्यंत आदर और सम्मान का भाव। यह मैं बहुत ही हृदय से कृतज्ञ और सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं कि स्वाध्याय मंडल और भाई प्रोफेसर
अनंत कुमार गिरी जी ने मुझे चित्त भाई के बारे में कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। साथ ही उनके बहाने हम हिंदी के प्रख्यात रचनाकार स्वर्गीय कुबेर नाथ राय, जो हिंदी के कीर्तिलब्ध निबंधकार, ललित निबंधकार थे, गद्यकार थे, विशिष्ट लालित्य के वैभव थे। असल में चित्त भाई के बारे में बात करने का अर्थ है भारत की सांस्कृतिक धारा का अवगाहन, एक ऐसी विचारणा का अवगाहन जो जमीन से होकर आती है और विश्व के पटल पर छा जाती है। मैं अपने श्रोताओं और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दुनिया की अनेक भाषाएं जानने के बावजूद चित्तरंजन दास जी ने अधिकतम मातृभाषा ओडिया में लिखा। वह आज के लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। इस बात को समझना चाहिए कि किस तरह से चित्तरंजन दास ने अपने जमीन को, अपनी अस्मिता को, अपनी भाषा के गौरव को नहीं छोड़ा। आप सब जानते हैं कि जगत सिंहपुर में उनका जन्म हुआ 3 अक्टूबर 1923 को, और वे इस धराधाम से प्रयाण करने के लिए उन्होंने जो दिन चुना वो 16 जनवरी 2011 को भुवनेश्वर में चुना। आप जानते हैं कि वे कोपेनहेगन विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, अनेक विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी रहे थे, और साहित्य अकादमी जो उनको सम्मान मिला था वो विश्वाकु गवाक्ष के ऊपर मिला था, जो प्रख्यात उनकी पुस्तक है। आप सब जानते हैं कि उनको भारत के जितने पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र के श्रेष्ठ सम्मान हैं, जैसे सारला सम्मान पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार, विश्व पुरस्कार इत्यादि प्राप्त हो चुके हैं। यह पुरस्कार तो उनसे पुरस्कृत होते हैं, पुरस्कार चित्त भाई नहीं पाते हैं। ये साहित्य के लोग, एक प्रख्यात गद्यकार को पा करके उपलब्ध होता है। यह कहना कि चित्त भाई को किसी संस्था ने पुरस्कृत किया, ऐसा मैं सोचता हूं कि यह एक अतिशयता होगी, क्योंकि एक ऐसा विलक्षण गद्यकार हमारे पास भारतीय साहित्य में है जिन पर सही में दृष्टि नहीं गई है। रेखा चित्र हो, यात्रा विवरण हो, निबंध हो, ललित निबंध हो, शिक्षा पर उनके विचार हों, साहित्य पर उनके विचार हों, आलोचना पर विचार हों, गद्य की शायद ही किसी विधा में उन्होंने लेखनी न चलाई हो। तो वो इस मामले में कुबेर नाथ राय से थोड़े अलग ठहरते हैं, क्योंकि कुबेर नाथ राय ने अपनी जो विधा चुनी थी वो निबंधों की, स्पेशली ललित निबंधों की चुनी थी, लालित्यपूर्ण जो निबंध है उसमें चुनी थी। लेकिन यहाँ चित्तरंजन दास जी ने इतने शानदार एशिया के यात्रा विवरण लिखे हैं कि वो तो गनीमत कहिए कि भाई प्रोफेसर अनंत गिरि जी ने उन पर देश का ध्यान आकर्षण किया, उनकी किताब के संपादन की ओर ध्यान दिया और उनके विशिष्ट गद्यों का संचयन प्रकाशित किया। यह मैं अपने हृदय से, हृदय की अतल गहराइयों से प्रोफेसर अनंत कुमार गिरि जी को साधुवाद देता हूं कि ऐसे विलक्षण प्रतिभा को, जो भारतीय स्तर की बड़ी प्रतिभा थी, उसको देश स्तर पर बड़े पैमाने पर लाने का उन्होंने कार्य किया। यह केवल एक साहित्यकार के साहित्य को लाना नहीं है। सच बात यह है कि एक जब ओडिया रचता है तो वह भोजपुरी ही रचता है, एक जब भोजपुरी रचता है तो वह बंगला ही रचता है, एक बंगला रचता है तो वह कन्नड़ ही रचता है, और एक कन्नड़ रचता है तो तमिल ही रचता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम सबका जो गवाक्ष है, हम सबकी जो दृष्टि है, हम सबका जो हृदय अंतरतम है। प्रोफेसर चित्तरंजन दास ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि जो देखने की दृष्टि है वो आंख से नहीं आती, वो तो हृदय से आती है, और हृदय की जो तरलता है वो चित्तरंजन दास जी ले आते थे। मैं वही बात उठाना चाहता हूं
कि चितरंजन दास के साहित्य का जो सौष्ठव है, प्रतिमान है, वो क्या है। पहली बात कि हृदय की तरलता, जहां हार्दिकता उनके साहित्य में विराजती रहती है। दूसरी बात कि चितरंजन दास यानी चित्त भाई के साहित्य में विचारणा के तत्व, यानी वो बह नहीं जाते हैं साहित्य में कहते कहते, विचार और विवेकशीलता को लगातार बनाए रखते हैं, उस पर गति को बचाए रखते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर प्रारंभ करना चाहूंगा। टैगोर पर एक उनका निबंध है। टैगोर पर निबंध लिखते हुए वे कहते हैं कि क्या आप टैगोर को कोई सामान्य कवि समझते हैं? टैगोर कोई सामान्य कवि नहीं थे, ऐसा उनका मानना है। चित्त भाई का उनका मानना है कि टैगोर सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं थे, उनको जनरलाइज क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण वो देते हैं। जब वो कारण देते हैं, वही कारण उनकी आलोचना की प्रणाली के अनुसंधान को प्रकट करता है। यह समझना चाहिए कि उनकी गद्यात्मकता का जो आधार है, जो बेस ऑफ द प्रोजेइक अप्रोच है, वो कहां से आता है, वो मैं बताता हूं। वो कह रहे हैं कि टैगोर सृजनात्मकता के विभिन्न आयामों में प्रवेश करते हैं। इस बात को समझें आप। वे कहते हैं कि डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द क्रिएटिविटी, वहां जाते हैं टैगोर। यानी टैगोर सृजनात्मकता के जितने आयाम हो सकते हैं, जितने, जैसे साहित्य है, पत्रकारिता है, म्यूजिक है, पेंटिंग। आपको मालूम है कि 60 साल के बाद टैगोर ने पेंटिंग शुरू की। मालूम है सबको, हमारे जितने श्रोता और दर्शक हैं वो बहुत आदर से जानते हैं कि टैगोर ने अपने जीवन के उत्तर काल में पेंटिंग शुरू की और आज एक टैगोर पेंटिंग स्टाइल बन चुकी है। आप सबको पता है कि टैगोर ने यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो संगीत की शैली का एक नया आयाम दिया, वो आज एक नई शैली बन चुकी है। जो टैगोर ने नाटकों में एक नई दिशा दी, जैसे नौका डूबी उनका जो नाटक, वो एक नई शैली बन गई। तो यह बात पकड़ते हैं चित्त भाई, वो समझते हैं कि कोई व्यक्ति जब सृजनात्मकता में आता है तो कितने शेड्स होते हैं, कितनी अंतर्ध्वनियां होती हैं। इन अंतर्ध्वनियों के अनुगुंजन को, अनुरणन को, जैसा कि हमारे रणवीर भाई ने 2 हमारे साधकों के बड़े सुंदर गीत नीरज के सुनवाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। बड़ा सुंदर लगा। इसके लिए मैं उन 2 जो गायक हैं और हमारे रणवीर जी को और स्वाध्याय मंडल को और भाई अनंत जी को बधाई देता हूं, क्योंकि धरा पर अंधेरा को रहने देने की कोई बात ही नहीं है। क्यों कि जब उजाला आ जाएगा तो अंधेरा तो रहेगा ही नहीं, वो तो चला जाएगा। और कल का जो अमावस्या का अंधेरा है, वो हम अपने हृदय के उजाले से प्रकाशित करें। अंधेरे की भी जरूरत होती है जिंदगी में। जब हम सोते हैं तो अंधेरा हमें चाहिए होता है। यानी अंधेरे और उजाले का जो संतुलन है, वो धूप और छांव का संतुलन है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम साहित्य का जो निर्माल्य है उसको प्रस्तुत करें एक उजाले को लाने में। जब उजाले का स्पेसिफिक ग्राफिक बनता है तो अंधेरा जो होता है वो कहीं ना कहीं, मतलब अंधेरा और उजाले में द्वंद नहीं है, वास्तव में होता उजाला ही है। अंधेरा उसका एक ऐसा पक्ष है जो अन्यतर है, वो होता ही नहीं। अंधेरा होता ही नहीं, होता केवल उजाला है। जैसे होती आत्मा ही है, आत्मा के प्रकाश में जीवन प्रकाशित होता है। तो यही बात तो चित्त भाई कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो जीवन के विविध सृजनात्मक आयाम हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो क्रिएटिविटी प्रकट करते हैं, चाहे हम कुछ कविता लिखते हैं, चाहे हम कुछ गद्य लिखते हैं, चाहे हम पेंटिंग करते हैं, चाहे हम संगीतबद्धता में जाते हैं, चाहे हम खेलते हैं, चाहे कूदते हैं, ये क्या है? हमारे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम हैं। यही बात अपनी आलोचना की प्रणाली में भाई चित्त भाई इस बात को कहते हैं। वो यह भी कहते हैं, आप जरूर हमारे जितने मित्र और श्रोता हैं ध्यान दें इस बात पर, कि जो ईशावास्य उपनिषद है
वह कहता है कि जो कवि है वह सामान्य स्थिति में नहीं देखता, कभी कभी भी देखने की जो शक्तिशीलता है वह सामान्य नहीं होती उसकी, वह कुछ सामान्य से ज्यादा होती। तभी तो कवि है। सारे दुनिया के सारे लोग पीड़ा महसूस करते हैं। कौन है जिसको अगर थोड़ा सा कट लग जाए, आंख में दर्द हो, नाक में दर्द हो, मुंह में जाए, तो किसको दर्द नहीं होगा? लेकिन अब कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, कवि जो मनीषा को प्रकट करता है, अनुभव जन्यता को प्रकट करता है, अनुभूति को, फीलिंग को लाता है और एक्सपीरियंस को फीलिंग में कन्वर्ट कर देता है। अपने अनुभव को अनुभूति में जो बदलने की उसके पास एक मांगल्य कला है। इस बात पे चित्ता भाई ध्यान आकर्षित करते हैं कि हमारे उपनिषद में, जो ईशावास्य उपनिषद है, उसमें कहा गया है कि कवि सामान्यतरता से ऊपर उठ करके देखने की गहर अंतर्दृष्टि रखता है, गहन क्षमता रखता है। इसलिए चित्त भाई कहते हैं कि भैया, टैगोर की कविता साहित्य में हृदय को आलोकित करती है, हृदय से हृदय को आलोकित करती है। टैगोर की कविता कहाँ से निकलती है? हृदय से। कहाँ पहुंचती है? हृदय में। तो हृदय से हृदय को जो आलोकन मिलता है, वही तो कल का दिवाली का पर्व है, वही तो दिवाली हमारी है। दिवाली है क्या चीज? दिवाली जो है वो हमारे हृदय में जो उपस्थित आलोक है, हमारा जो भारतीय जो एक तरह से मनीषा हमारी है, भारतीय जो हमारा शास्त्र है, वो कहता है कि हृदय में आलोक पहले से है आपके। कबीर कहते हैं कि आपका हृदय तो पहले से निर्मल है, बस उसको थोड़ा सा जो राख जमी है उसको झाड़ना है, जो राख जमी है उसको झाड़ना है। तो आप सोचिए कि चित्त भाई कहाँ जाते हैं? चित्त भाई कहीं यहाँ इस टैगोर नामक निबंध में, टैगोर नामक जो लेख है उनका ऐसे है, उसमें कबीर का तो नाम नहीं लेते, लेकिन जाते कहाँ है, पहुंच कहाँ जाते हैं? अपनी अंतः प्रतिभा से उसी कबीर के पास। यानी सारे कवियों के, सारे जो रचनाकार हैं, सारे सृजनात्मक जो व्यक्तित्व हैं, उनकी जो दृष्टि है वह अंतरतम में एक ही है। यह जो है, इसीलिए वो कहते हैं कि टैगोर सत्ता की टोटलिटी में पोएट थे। और जब पोएट थे, यानी ह्यूमन बीइंग और ह्यूमैनिटी को कैसे एक दूसरे में कोलैबोरेट कर देते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ये चित्त भाई बताते हैं। ये आलोचना है चित्त भाई की, ये निबंध है चित्त भाई का। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय स्तर पर उन्हें देखा जाना चाहिए। मैं आपको आंतरिक रूप से बता दूं कि कुबेर नाथ राय भी लगभग यही बात कहते हैं। कुबेर नाथ राय भारतीय संस्कृति में तारल्य को गहरे छू लेते हैं, गहरे पहचान लेते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे जितने जितने वर्ग हैं, जितने आयाम हैं, जितने माने अस्मिता मूलक जो विमर्श हैं, उन सब के कारणों और तहों में जाएं तो एक मनुष्यता की आभा झलकती है। वहां एक इंसानियत है, एक आदमियत है, और आदमियत से बढ़ करके कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। इसीलिए कुबेर नाथ राय ने यह बात कही कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यह देश सबका है। जितना आर्य का है उतना ही अनार्य का है। यह देश जितना भील का है उतना ही मैंने किरात का है, कोल का है, बनवासी का है। चित्त भाई भी यह बात उठाते हैं कि ओडिशा की जो कला है, ओडिशा की जो संस्कृति है ना, वो उसमें आदिवासी तत्व बहुत भारी मात्रा में। तो चित्त भाई कहते हैं कि जो ओडिशा की या ओडिया जो कविता है या ओडिया जो लिटरेचर है, अगर ये आदिवासी भाषाएं न होती तो शायद ओडिया जो प्रतिभा है, जो ओडिया कला है, जो ओडिया साहित्य है, उस तरह से व्यापक और गहरा नहीं होता। अब देखिए कि कहां से जोड़ते हैं चित्त भाई।
चित्तरंजन दास कहाँ से जोड़ते हैं? वो कह रहे हैं कि साहब केवल जो सुपरफिशियल एलीट क्लास है वो किसी लिटरेचर को रच नहीं सकता, उसके पीछे का जो लोक मंगल है, जो फोक लिटरेचर है, एक लेख है उनका चित्तरंजन दास जी का, फोक कल्चर एंड लिटरेचर करके। आप उस लेख को पढ़िए, आप देखिए कि कैसे जो तंतु हैं लोक जीवन के और साहित्य के बीच के, साहित्य से अर्थ है कि अधुनातन जो साहित्य है उसके बीच के जो संपर्क हैं, उन संपर्कों की गहरी पड़ताल करते हैं। यानी कि गहरे जुड़ाव से, गहरे लगावों के बगैर आप साहित्य की संरचना नहीं कर सकते। आप प्रकटीकृत रूप में आगे देखिए कि कैसे गोपीनाथ महांती का परजा है, माटी मटाल है, या आपका आदिभूमि एक बहुत सुंदर बड़ा उपन्यास है हमारी डॉक्टर प्रतिभा राय का, आपने देखा ही होगा। डॉक्टर सीताकांत महापात्र की इतनी सारी कविताओं में आदिवासी जो जीवन है, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर सीताकांत जी की कविताओं से आदिवासी जीवन की छवियां, उनके संपर्क, उनकी गहराई, उनकी दृष्टि हटा दी जाए तो क्या बचता है? आधुनिकता कितनी बचती है अगर परंपरा न हो तो? यही बात तो कह रहे हैं चित्त भाई कि वही आधुनिकता है जो परंपरा के रास्ते से गई। उसमें जो हमारी भावभूमि है, जो चित्त भूमि है, जिसको अनंत भाई कह रहे थे कि चित्त विस्तार उनकी रचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि उनकी रचनाओं के पहले नाम तो सुन लीजिए, चित्तरंजन दास जी की रचनाओं के, वो आपके नाम से ही जो रचनाओं की शीर्षक हैं उससे ही आपको लग जाएगा कि उनका दृष्टिबोध कहाँ तक जाता है। विश्व परिक्रमा पुस्तकों के नाम, कुछ पुस्तकों के नाम समय की कमी के कारण अपने दर्शकों और श्रोताओं को बता देना चाहूंगा मैं। व्यक्ति व व्यक्तित्व, चिद विस्तार, देखो देखो के बासा, डेनमार्क चिट्ठी, दिव्य मुहूर्त, दिव्य प्रत्याशा, ई मोरा देश, एकलव्य कथा ओ अन्य प्रबंध, गांधी गोपबंधु, गप अगप, ग्रंथ मंथन, जंगल चिट्ठी। ये कुछ हमने उनकी रचनाओं के नाम बताए। इससे आपको उनकी दृष्टि का संबोध, उनकी दृष्टि की विस्तारता, उनकी दृष्टि की गहराई का अवश्य भान होगा कि एक तरफ तो वो विश्व जो जोड़ते हैं, मतलब उनका ट्रेवलॉग जो है, जो उनका यात्रा विवरण है, मुझे ऐसा लगता है, यह मैं एक अपनी प्रशस्ति देना चाहता हूं कि चित्तरंजन दास जी का जिस कोटि का यात्रा प्रबंध है, देश की बहुत सारी भाषाओं में उस स्तर के यात्रा के निबंध बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक यात्रा निबंध हमने बहुत श्रेष्ठ पढ़ा है, जो मुश्किल से 100-125 पेज का है, जो ज्ञानपीठ प्रकाशन ने उसका अनुवाद छापा है। उसका नाम है अनेक शरत। वो डॉक्टर सीताकांत महापात्र का है। ये बहुत ही क्वालिटेटिव है। तो मैं कई बार चित्त भाई के ये जो उनका विश्व परिक्रमा है ना, उससे आप तुलना करके अनेक शरत की सीताकांत जी से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगे, बहुत सुंदर है। मैं तो इस मंच के माध्यम से, अगर मुझे शोधार्थी सुन रहे हों, विद्यार्थी सुन रहे हों, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि आप इन चीजों को आप रुचिशीलता से देखिए, खोजिए कि किस तरह से ओडिया में ही अलग अलग जो यात्रा विवरण लिखने वाले हैं, रिपोर्टाज लिखने वाले हैं, रेखाचित्र लिखने वाले हैं, गद्य के जो पारखी हैं, उनका आप तुलनात्मक अध्ययन करिए। बहुत खूबसूरत आपको परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनकी जो छवियां हैं, जो उनकी शैली बद्धता है, जो उनके गद्य के शिल्पगत आयाम हैं, बहुत खूबसूरती से आपको देखने को प्राप्त होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरविंद, जो महर्षि अरविंद थे, सबने उनको देखा है अपनी अपनी निगाह से। एक सुंदर सा निबंध है चित्तरंजन दास जी का अरविंद पर, बहुत ही सुंदर निबंध। उसमें वो क्या बड़ी बात कहते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब देखिए, जो शत्रु है हमारा, एनिमी जो है, वो बाहर नहीं है, जैसा कि लोग सोचते हैं कि कोई बाहर का एनिमी होगा और वो आकर के आक्रमण करेगा। एक बड़ी सुंदर कविता सीताकांत जी की है शत्रु नाम से, सेम यही बात। वो उसमें दिखाते हैं कि कैसे वो एक अस्पताल है, उसमें कोई नर्स है, वो लगाती है इंजेक्शन, और पूरा शत्रु भाव पूरा क्रिएट जो है
वो किया है उन्होंने, बहुत खूबसूरती से एक साइकोलॉजिकल एक तरह से प्रस्तुति उन्होंने की है। पूरी कविता मनोविज्ञान की पूरी तरह से कविता है वो। तो ये बताने की कोशिश करते हैं चित्तरंजन दास जी कि अरविंद की निगाह में, अच्छी बात है, इसको समझें हमारे जो श्रोता है, कि जो शत्रु है वो बाहर से नहीं आता, वह तो एक उसका बाय प्रोडक्ट है जो बाहर से आता है। आप पर बाण चलाता है, तीर चलाता है, आप पर प्रहार करता है, अथवा आप पर कोई आघात करता है, चाहे आपका नुकसान करता है, चाहे डिफरेंट तरीके से काम करता है, तो ये अलग चीज है। और वो कह रहे हैं कि जो असली चीज है वो हमको जो परेशान करती है वो हमारे भीतर है। इस भीतरी तत्व को समझने की कोशिश लगातार साहित्य में चित्त भाई ने की, और कुबेर नाथ राय ने भी भारत की आत्मा के अंतस्थल को ही पहचानने की कोशिश की है। दोनों में यह गहरी एक रूपता है। जैसे सामाजिक कारणों के साथ साथ जो व्यक्तिगत कारण है, जो वैयक्तिक उपक्रम है, उनमें भी दोनों उभर के जाते हैं। दोनों ही देखते हैं कि क्या जो सामाजिक कारण है उनके पीछे कुछ वैयक्तिक कारण भी हैं। कई बार जब हम समालोचना करते हैं साहित्य में तो हर बात हम सिस्टम पे डाल देते हैं। अरे सिस्टम बड़ा खराब है साहब, समाज बड़ा खराब है साहब, समुदाय बड़ा खराब है साहब, जात बिरादरी बहुत इस तरह की है, उनका इस तरह से वो हो रहा है। ठीक है, ये सब हो सकता है, लेकिन सामाजिक कारणों में जाने के साथ साथ आप ये देखिए कि जो व्यक्ति ही तो समाज को बनाते हैं, जो क्रिएशन ऑफ सोसाइटी है वो कहाँ से होती है। तो हमारे विद्वान प्रोफेसर अनंत जी जानते हैं, जो प्रख्यात समाजशास्त्री हैं, कि जो हमारी वैयक्तिकता है वह सामाजिकता का कॉलोनी नहीं है। हम कॉलोनाइज नहीं कर सकते अपनी वैयक्तिकता को, उसकी अपनी ऑटोनॉमी है। ये ऑटोनॉमी अनेक बार जब टकराती है सामाजिकता से, टकराना तो नहीं चाहिए लेकिन कई बार उसकी होती है, तो उसमें चित्त भाई कह रहे हैं कि हमारा शत्रु हमारे भीतर बैठा हुआ है, उस शत्रु को देखने की जरूरत है। फिर वो लोगों को बहुत प्रखर रूप में सामने, कौन से दो रूप हो सकते। एक तो कहा कि जो हमारी सेल्फिशनेस है, हमारी स्वार्थांधता जो है, और एक हिपोक्रेसी। ये हिपोक्रेसी जो है और स्वार्थांधता, ये दो चीजें जो है अगर हम इनको काबू में करें या इनको समझने की कोशिश करें, इनको विवेकशील तरीके से समझ लें, इनको जान लें, तो हम बहुत हद तक इससे माने उऋण हो मतलब उबर सकते हैं। उऋण शब्द के लिए माफी चाहता हूं, उबर सकते हैं। और जो एक बड़ी बात वो बता रहे हैं अरविंद के हवाले से, महर्षि अरविंद के हवाले से, कि देश किसको कहते हैं, क्या देश है। तो उन्होंने देश को केवल भूगोल मानने से इनकार किया। फिजिकल कैरेक्टर केवल भूगोल का नहीं है, ज्योग्राफिकल कैरेक्टर केवल देश का नहीं है। ये देश है, यहाँ से यहाँ एक ये प्रदेश है, यहाँ वो प्रदेश, यह एक ज्योग्राफिकल कैरेक्टर। लेकिन वो कह रहे हैं कि असल बात क्या है। असल बात यह है कि देश में रहने वाले जो वासी हैं, निवासी हैं, वही देश को देश बनाते। तो देश के निवासी ही देश है वास्तव में। फिजिकल कैरेक्टर या ज्योग्राफिकल कैरेक्टर ये स्वतः सहज रूप में जुड़ता है, लेकिन देश की अंतरात्मा, तो देश के वासी हैं, देश के निवासी हैं, उसको केवल भौगोलिकता में, ज्योग्राफिकल कैरेक्टर में डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। अब ये सोचिए कि वो आदमी अरविंद, महर्षि अरविंद, जो एक साधु पुरुष हैं, एक ज्ञानी हैं, क्रांतिकारी हैं, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं, वह देश को किस रूप में देख रहे हैं और चित्त भाई क्या चाहते हैं कि देश कौन है। देश हम सब हैं जो हम देश में रहते हैं, देश को देश बनाते हैं। इसी तरीके से जब ओडिया कविता पर चित्त भाई बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए ओडिया कविता के बहुत सारे रूपाकार हैं, मेटाफर्स हैं, उसके बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे शेप्स हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि साहब भीमा भोई जिस तबके से आते हैं और वहां से कविता को उठाकर जिस कोटि को पहुंचा देते हैं, जिस ऊंचाई को पहुंचा देते हैं, वो बहुत ही आदर का विषय है, बहुत ही सम्मान का विषय है।
तो अपनी पूरी आलोचना में भीम भोई को बहुत ही आदर के साथ वो प्रस्तुत करते हैं। कई बार ऐसा लगता है, यह मेरा अपना मत है, जो विद्वान है वो तो हमारे श्रोता बताएंगे, और मैं इसका बहुत दावा नहीं कर सकता, बहुत मैं विनम्र रूप में, कि ऐसा लगता है कि चित्तरंजन दास की जो कविता के प्रतिमान है, अगर मध्यकाल का कोई कवि लेके कहें या कोई संत कवि लेके कहें तो वो भीम भोई ही। यह अकिंचन नहीं है कि सीताकांत बाबू ने भी भीम भोई पर बहुत गहरे निबंध लिखे। यानी निश्चित तौर पर भीम भोई एक ऐसी सामाजिकता के प्रतिरोध में एक ऐसी हार्दिकता प्रस्तुत करते हैं जो समाज के विभिन्न तंतुओं को तो मजबूत करती ही है, क्योंकि वो अंत्य तबके से आते हैं, लेकिन जहां पे साधुता है, जहां पे हृदय का मांगल्य है, वहां पर एक श्रेष्ठ ऊंचाई, मानक ऊंचाई दे करके, स्टैंडर्ड हाइट दे करके उड़िया कविता को उन्होंने शीर्ष पर पहुंचाया। चित्त भाई कहते हैं कि जो ओडिशा की जमीन है, ओडिशा की जो धरती है, वो बौद्ध है ना, बौद्ध, जैन और जो हिंदू, तीनों जो पंथ हैं। मैंने खोजने की कोशिश की कि कई जगह सनातनी शब्द का भी चित्त भाई ने प्रयोग किया है, तो यहाँ पे तो उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया है, तो हम स्पष्टता ले सकते हैं। ये बात हमने अनंत जी की संपादित पुस्तक से लिया है, और वो कह रहे हैं कि जो जैन और जो बौद्ध और जो हिंदू परंपरा है, उसका एकीकरण कहीं अगर ठीक से होता है देश में, तो वो ओडिशा की जमीन, ओडिशा की भूमि। और एक वो बात और भी कह रहे हैं कि जो शैव है, वैष्णव है और शाक्त है, वो भी एकीकृत रूप में ओडिशा में मिलती है। तीनों प्रणालियां, तीनों शैलियां, जीवन को जीने की तीनों उपासना की जो शैलियां हैं। वो कहते हैं कि कलिंग में जो जिन महावीर हैं, उनके आने का एक प्रमाण है, मिलता है। और अगर प्रामाणिक तिब्बतन पाठ को ले लें, तिब्बतन टेक्स्ट को लें, तो उसके अनुसार ओडिशा जो है वही एक ऐसी भूमि थी जहां पर तांत्रिक बुद्धिज्म का शास्त्र जो है वो विकसित हुआ। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये जो चित्तरंजन दास हैं, इस बात को एक तरह से स्थापित करते हैं कि जो तांत्रिक बुद्धिज्म है वो उड़ीसा ही जमीन चुनता है, उड़ीसा की जमीन चुनता है। और सहजयान, महायान, तमाम जो ये हमारे बुद्ध धारा के जो विभिन्न जो मार्ग हैं, उनको भी चुनने का जो स्थान है ज्यादातर वो उड़ीसा की जमीन। तो वो कहते हैं कि ये उड़ीसा की जमीन को गौरव प्राप्त है कि भारत की जो विभिन्न प्रणालियां हैं, जो विभिन्न पंथ हैं, उनको एकाकार करने की अगर कोई जगह है, कोई स्थान है, कोई पटल है, तो उड़ीसा की वो महान भूमि है, उड़ीसा की वो महान धरती है, जहां फ्रैक्शन नहीं होता, बंटवारे नहीं होते, सम्मिलन होता है। हिंदू का बौद्ध से, बौद्ध का जैन से, वो तो ईसाइयों तक को लेके आते हैं चित्त भाई, वो विस्तार से कई बार उसको समझाते हैं। तो यह उनका एक मन भी प्रकट करता है चित्त भाई का कि वो कैसा साहित्य चाहते हैं, कैसा समाज चाहते हैं। वो जब ये उदाहरण देते हैं तो कैसा समाज चाहते हैं? वो चाहते हैं कि समाजों में पथों को लेकर के, पंथों को लेकर के विभाजन न हो, हम सब एक रहें, भारतीय मन एक रहे, और यही कारण होंगे भारत के विकास करने। क्योंकि कई बार जब हमारा सांस्कृतिक विपथन होता है तो हमारी अवगति होती है और हम अपना ध्यान देश के विस्तार के बदले आपस में लड़ने में ही वो लगा देते हैं। इसीलिए चित्त भाई कहते हैं कि सारला दास जो इतने बड़े कवि थे, इतने बड़े एक महान हमारे रचनाकार ही नहीं, सांस्कृतिक एक धारा के प्रतीक थे, उनको कहते हैं कि अगर उनको प्रतिरोध का स्वर माना जाए, द वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस माना जाए, प्रोटेस्ट माना जाए, उनका वर्ड है द वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट, तो जो पंच शाखा हैं
उनको अंतर की आवाज, हार्दिक आवाज मान सकते। अब ये देखिए कि एक कवि को वो द वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट कह रहे हैं, लेकिन पंच सखाओं को हृदय की वॉइस कह रहे हैं। यानी अपनी आलोचना की लाठी से दोनों को एक ही नहीं कर दे रहे हैं। ये बारीकी आप देखिए चित्त भाई, कि वो एक गहरी बारीकी, जो गहरी जो एक जो मतलब उसमें एक अंतर है, अंतरीकरण को करते हैं ना, यही एक बात है ना आलोचक की। इसीलिए चित्त भाई केवल गद्य नहीं रचते, गद्य के पीछे के जो मनोभाव हैं, जो गद्य के पीछे का एक आलोचकीय व्यक्तित्व है, इसीलिए उनके एक पुस्तक का नाम है व्यक्ति वो व्यक्तित्व। पर्सन और पर्सनालिटी यानी पर्सन और पर्सोना दोनों पर बल देते हुए उनकी जो आलोचना की प्रणाली है वो विकसित होती। फकीर मोहन के बारे में कितनी खूबसूरत बात चित्तरंजन दास ने कही। उन्होंने कहा कि जो उनके यहाँ आधुनिकता आती है, वहां से ही तो ओडिया कथा की आधुनिकता शुरू होती है। सब कुछ तो पूछते हैं कि आधुनिकता आती कहाँ से आधुनिकता आती? कहते हैं वो जो आधुनिकता आ रही है फकीर मोहन सेनापति में, वो ओडिया की जो महान परंपरा है उस परंपरा की धारा की आधुनिकता, यानी जो आधुनिकता है वो परंपरा का एक नव रूपांतरण। मैं यही बात अपने एक व्याख्यान में कुबेरनाथ राय के बारे में कह चुका हूं और आज भी मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं कि कुबेरनाथ राय जी की भी जो आधुनिकता है, वो भी जिस आधुनिकता की कल्पना करते हैं, जो संभाव्यता प्रकट करते हैं, वह देश की, हमारे एशियाई समाजों की खूबसूरत परंपरागतता यानी ट्रेडिशनैलिटी से होके आती है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हमारे हिंदी के बहुत बड़े राइटर थे, एसेइस्ट थे, गद्यकार थे, निबंधकार थे, उन्होंने कहा कि जब आप चलते हैं तो एक पैर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दोनों पैर एक साथ नहीं आगे बढ़ाते, एक पैर तो स्थिर ही रहता है। वो जो स्थिर रहता है वो पैर परंपरा है, जो आगे बढ़ता है वो आधुनिकता है, गतिशीलता है, वो एक डायनेमिक्स है, एक गति शास्त्र है, और जो पैर स्थिर है वो परंपरा शास्त्र। तो परंपरा और आधुनिकता के सम्मिलन से साहित्य की विकसनशीलता होती है, वो विकास करता है। और चित्त भाई एक खूबसूरत बात कहते हैं कि अगर कोई भी समाज वो उड़िया समाज की केवल बात नहीं कर, देश के किसी भी समाज की बात उठा रहे, कि अगर कोई समाज अपनी भाषा की निष्ठा पूर्वक स्वीकृति नहीं करता, उसको स्वीकार नहीं करता, तो आप ये जान लीजिए कि इसका अर्थ हुआ क्या। इसको वो बहुत गहराई तक समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हुआ कि आप अपने ही प्रदेश की, अपने ही देश की जो जनता है उसको इनकार कर रहे हैं, उसको ठुकरा रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जनता को इनकार कर रहे हैं। देश के इतने बड़े भूभाग, प्रदेश के इतने बड़े भूभाग के जनमानस को आप रिजेक्ट कर, तो ये जो भाषा को वो पूरी एक सृष्टि से जोड़ते हैं, सामाजिक और वैयक्तिक दोनों सृष्टियों से जोड़ करके कहते हैं कि आप अपनी भाषा को स्वीकृति दीजिए, उसको रचिए, उसको सृजित करिए। आजकल क्या हो रहा है कि आधुनिकता के नाम पर अपनी भाषा को छोड़ने की प्रणाली चली हुई। घर में कोई बच्चा आता तो लोग कहते हैं कि बेटे जरा सा कुछ सुनाओ, वो कुछ भी सुनाएगा दूसरी भाषाओं में, लेकिन अपनी भाषा की बात वो नहीं करेगा, उसमें उसको स्वाभिमान अनुभव नहीं है। इस स्वाभिमान को लाने का जो कार्य है, और मैं स्वाभिमान से बहुत आगे की बात कहना चाहता हूँ चित्त भाई के बारे में, जो व्यक्ति की हार्दिकता है, वहां जहां से मैंने उनके बारे में अपनी बात कहनी, संवाद कहना आरंभ किया था, हार्दिकता, वो हार्दिकता की प्रस्तुति देते हैं कि जो बात हृदय से ही नहीं निकलेगी वो कैसे जाएगी दूसरे के मन में, जो चित्त से ही नहीं निकलेगी वो किसी के चित्त में प्रवेश नहीं कर सकती। मैं तो कहता हूं कि चित्तरंजन दास अपने नाम को ही सार्थक करते हैं, वो हम सब की भारतीय आत्मा के, भारतीय चित्त के रंजन के प्रति, इसीलिए वो हमारे चित्तरंजन थे। और केवल साहित्य पर वो टिप्पणी नहीं करते, साहित्य पर अपनी बात नहीं करते। चित्तरंजन दास कहते हैं कि नेतृत्व कैसा होना चाहिए, हमारे देश की लीडरशिप कैसी होनी चाहिए,
अगर हमारे देश के नेता वेता लोग इसको जरा सुन लें, चित्तरंजन दास जी के व्यक्तित्व को, ये जो बात वो कहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो उनका जो आंख है वो खुल जाएगी, वो समझ जाएंगे कि नेतृत्व जो है या जो लीडरशिप है वो कैसी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि लीडरशिप वो होनी चाहिए, है ना, नेतृत्व यानी हिंदी में कहें मोटा मोटी तो नेतागिरी ऐसी होनी। अब तो नेतागिरी शब्द बड़ा थोड़ा सा स्तरीय नहीं माना जा रहा है, जबकि नेता शब्द हम सुभाष चंद्र बसु जैसे महान व्यक्ति के बारे में कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन आजकल एक शब्द ऐसा आ गया नेतागिरी। अब मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, बट नेतृत्व शब्द का जो उल्लेख भाई चित्तरंजन दास ने किया है उसको समझें। बहुत खूबसूरत बात कही है, इसको जरूर ध्यान से सुनना चाहिए और नोट करना चाहिए डायरी में। वो कहते हैं कि साहब नेतृत्व का अर्थ है जो स्वयं भी प्रकाशित हो और दूसरों को भी प्रकाशित करे। बताइए, इतनी गहरी कल्पना चित्तरंजन दास की है कि चित्त की सृष्टि से, व्यक्ति की सृष्टि से, आत्म की सृष्टि से वह देश की सृष्टि, विश्व की सृष्टि, पर की सृष्टि यानी दूसरे की सृष्टि करता है। जो स्वयं ही प्रकाशित नहीं होगा वो कैसे दूसरे को प्रकाशित करेगा? अगर हम स्वयं प्रकाशित हैं तो हमारे आत्मा प्रकाशित है, और दिवाली तो रोज बरोज है, उसके लिए कोई दिन नहीं, हमारे हृदय की अंतरात्मा का प्रज्वलन चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर प्रकाशित आप हैं, नेतृत्व हमारी लीडरशिप प्रकाशित है, तो जनता को जागृत करेगी। जागृत का मतलब वो बताते हैं कि सोने से जगाना नहीं, उसके अंतरतम को झकझोर देना। कहाँ सोए हो, क्यों नहीं जग जाते, कहाँ पे तुम्हारी चूक है, कहाँ देश जो है वो रुदन कर रहा है, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी को ठीक करो, सोशल पॉलिसी को ठीक करो, वर्ण व्यवस्था को ठीक करो, जाति को भंजित करो। ये सारी बातें हो सकती हैं अगर तुम देश को जगा दो, और देश को जगाने के पहले आवश्यक क्या है, खुद को जगाना। इसलिए वो कह रहे हैं कि नेतृत्व का जगना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। और एक इसी से जुड़ी हुई बात चित्त भाई कहते हैं कि युवाओं में अगर शिक्षात्मक गुणवत्ता यानी क्वालिटेटिविटी ऑफ द एजुकेशन नहीं आया तो कभी भी अच्छा नेतृत्व तैयार ही नहीं हो सकता। क्योंकि वो मानते हैं कि नया जो नेतृत्व हो तो युवा से पैदा हो। नेता तुम ही हो कल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। वो आपने गीत जो फिल्म का है, लीडर फिल्म का, वो गीत आपने सुना हो, है नेता तुम ही हो कल के। तो चित्तरंजन दास ये कहते हैं कि नेतृत्व जो है वो युवाओं से बनेगा, और उसमें स्वयं की प्रकाशना होनी चाहिए, और शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर, यानी जिस तरह से अनपढ़पना माने मैं एमए बीए की पढ़ाई से कमी की बात नहीं उठाते, कहते हैं कि आत्म प्रकाशित ही नहीं उनके अंदर, उनको जागरण ही नहीं है कि समाज में वंचना कहाँ है, दुख कहाँ है, परेशानी कहाँ है, पीड़ित कौन है, पीड़क कौन है। ये संज्ञान होना चाहिए, या पता होना चाहिए। ये कैसे होगा? ये जमीन में जाने से होगा, ड्राइंग रूम में नहीं होगा। जैसे कि आजकल की जो राजनीति है वो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स हो गई। वो चाहते हैं कि सारा का सारा रिमोट उनके ड्राइंग रूम में हो, लेकिन ऐसा नहीं है। चित्त भाई कहते हैं कि जाओ जाओ जमीन पे जाओ, धरती पे जाओ, उन गरीब मजूर, उन वंचित जनों के बीच जाओ, वहां देखो, उनको प्रकाशित करने के पहले अपने की प्रकाशना करो, मन साफ करो, संघर्ष के बीच में जाओ, लोगों के बीच में जाओ। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से देश बदलने वाला नहीं है। माफी चाहता हूं। तो ये जो प्रकाशना है वो प्रकाशना को बहुत बल देते हैं, और इसी के लिए वो कहते हैं कि जब आप इंडियन लिटरेचर में बच्चों का साहित्य रचते हैं तो बच्चों का साहित्य रचते हुए बच्चों के साथ जस्टिस होना बहुत जरूरी है। इस शब्द पे ध्यान दीजिए। चित्त भाई ने, मुझे लगता है कि ये इंडियन लिटरेचर में, अगर मैं अन्यथा न लें आप, पहली बार कहा इस बात को कि, माफ करेंगे, रखेंगे,
यहीं रख तो वो को कह रहे हैं कि बच्चों के साथ जस्टिस होना, न्याय होना बहुत जरूरी है। न्याय होना, अब इस शब्द पे ध्यान दीजिए कि बच्चों के साथ उनके बच्चे होने पर कितने अन्याय होते हैं, उनके हक, उनके हुकूक, उनके साथ हिंसा, उनके साथ दुर्व्यवहार। आप सोचिए कि एक साहित्य का विचारक बच्चों की साइकी में उतर करके, उनकी मनोविज्ञान में उतर करके इतनी बड़ी बात कह रहा है कि आप बच्चों का साहित्य लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे? इसके लिए आवश्यक ये है कि आप पहले जो बच्चों का मनोविज्ञान है, जो बच्चों की साइकोलॉजी है, उसको समझने की कोशिश कीजिए और उनके साथ जस्टिस जो हो सकता है उस जस्टिस के लिए प्रयास करिए। तो उनके लिए जो बच्चों का साहित्य है, बच्चों के लिए किए जा रहे जस्टिस का लिटरेचर, ये बातचीत भाई बच्चों के साहित्य पर अपना निबंध, प्रख्यात निबंध लिखते हुए कह रहे हैं। और जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि फोक लिटरेचर और जो मॉडर्निटी की बात वो उठाते हैं, तो आधुनिकता जो है वो बेसिकली, जैसा मैंने कहा कि लोक संवेदन से ही आती है, फोक सेंटीमेंट से आती है। और फोक सेंटीमेंट का क्या मतलब? फोक सेंटीमेंट का मतलब केवल रूरल सेंटीमेंट नहीं है, जैसा कि बहुत सारे हमारे लोग समझ जाते हैं। लेकिन जो अच्छे समाजशास्त्री हैं, विद्वान हैं, समझदार, वो जानते हैं कि फोक रूरल से डिफरेंट है और वो फोक की बात उठाते हैं, उसको बेस बनाते हैं मॉडर्निटी का। डॉक्टर चित्तरंजन दास, ये हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि आज की व्यवस्था ने जो है हमको जिस तरह से रचा है, जिस तरह से बनाया है, उसमें हमको चतुर तो बना दिया, क्लेवर, वो क्लेवर शब्द का यूज कर रहे हैं, आप पढ़िएगा निबंध। वो कह रहे हैं कि क्लेवरनेस दिया हमको, चतुराई तो दी, लेकिन हमको एलिएनेट बहुत किया है, अलगीकृत किया है, अलगाव पैदा किया हमारे। हम एक विभाजित व्यक्तित्व के, डिवाइडेड पर्सनालिटी के आदमी होते चले गए, ह्यूमन बीइंग होते चले। हमारा व्यक्तित्व गहरा विभाजित, उसमें जुड़ाव की बेहद कमी। यह बात वो बहुत गहराई से इस बात को रखना चाहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इस जो आधुनिक व्यवस्था हमें दे रही है, जो मॉडर्न सोसाइटी हमें दे रही है, वो क्या दे रही है? मॉडर्न सोसाइटी हमें चतुर तो बना रही है, लेकिन चतुर के साथ साथ हमें काट दे रही है। परिवार में काट दे रही है, विद्यालय में काट दे रही है, विश्वविद्यालय में काट दे रही है। पहले देखिए क्या होता था कि पॉलिटिक्स में अलग अलग धाराओं के भी लोग होते हुए, मतभेद रखते हुए भी मनभेद नहीं रखते थे। जो जनसंघी होते थे समाजवादियों के पास जाते थे, समाजवादी कांग्रेस के पास जाते थे, कांग्रेस के लोग कम्युनिस्टों के पास जाते थे, निर्दलियों के पास जाते थे। ये अच्छी बात होती थी, विचारणा की विस्तृति होती थी, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे को सहते थे, एक दूसरे के प्रति आलोड़न आकर्षण भी होता था। धीरे धीरे क्या किया आधुनिकता के विभिन्न प्रत्ययों ने कि एक दूसरे से अलग करना शुरू किया। बस मेरी धारा, मेरा झंडा, मेरी विचारधारा, मेरे लोग, ये कौन सी बात हुई भाई? चित्त भाई इसके मूल में जाके प्रहार करते हैं, इसके मूल में जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि चित्त भाई को समझने में बहुत समय की आवश्यकता है। उनका एक शास्त्र विकसित होना चाहिए भारतीय साहित्य के नए उपक्रम के रूप में। जब वे कहते हैं चित्त भाई की जो मीडियाक्रिटी है, मीडियाक्रिटी आज जब एक शैली सी बनती चली जा रही है, तो हमें जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा और संस्कृत की सांस्कृतिकी, वो हमें गति देती है कि हम परंपरा से क्या अवगाहन करके विकसित कर सकते हैं, आज की मीडियाक्रिटी को कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे उसमें एक डायनामिक्स ला सकते हैं। इसलिए वो अन्य जो भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं, उनको गहन बल देते हैं। और यहां तक कि जो हमारे देश में इमरजेंसी 1975 में लागू हुई, इसको बहुत से विचारकों ने अलग अलग रूपों में लिया, लेकिन चित्त भाई ने कहा कि जो इमरजेंसी है
उसके खिलाफ जो हमारा आंदोलन हुआ वह पुराने सत्याग्रह का ही एक रूप। ये देखिए, उनकी व्याख्या देखिए साहित्य में। सत्याग्रहशीलता मानते हैं किस चीज को? इमरजेंसी जो एक तरह से हमारे ऊपर थोप दी गई थी, लाद दी गई थी, हमारे हक और हुकूक को गलत तरीके से जो है वो तरह से नष्ट किया जा रहा था, हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा था। उसके खिलाफ जब बाबू जयप्रकाश नारायण और तमाम लोग खड़े हुए, कितनी यात्राएं उनको सहनी पड़ी। तो इसको किस रूप में देख रहे हैं चित्तरंजन दास? सत्याग्रह के नए विचारणा तत्व के रूप में, नई दृष्टि के रूप में देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि चित्तरंजन दास का जो साहित्य है वो उसी सत्याग्रह का एक नवीनतम विकास, ऐसा मैं मानता हूं। और प्रकारांतर से देखें तो कुबेर नाथ राय का भी पूरा का पूरा लिटरेचर एक ऐसे समझ और संवेद का विकास है जहां पर सत्य का ही आग्रह छुपा हुआ है। और सबसे जो बड़ी बात है कि वो यही बात चित्त भाई कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक नेता है, जो डेमोक्रेटिक लीडर है भारत में या दुनिया में, उसको दूसरों को देखने के पहले, जैसा मैंने अभी कुछ मिनट पहले आपको निवेदन किया था, अपने को भी देखना जरूर चाहिए। पहले आत्म निरीक्षण करना चाहिए कि मैं अगर किसी के सामने जा रहा हूं तो मुझे किस रूप में लिया जाए। क्या मुझे शर्म आनी चाहिए कि गलत चीज के लिए मैं जाके खड़ा हूं और सही चीज के पीछे छुप जाऊं? नहीं, वो कह रहे हैं कि सत्य का शोधन होना चाहिए, सत्य का आग्रह होना चाहिए, है ना, सत्याग्रह होना चाहिए। सत्याग्रह को बहुत बड़ी वो बात मानते हैं और कह रहे हैं कि जो लोकतांत्रिकता है हमारे समाजों में, अगर वो किसी लीडर में या किसी नेता में है या किसी व्यक्ति में है तो उसमें सच्चाई का समावेश होना चाहिए, सत्य का आग्रह होना चाहिए। और युवाओं को चाहिए, जैसा वो कह रहे हैं कि युवाओं को चाहिए कि वो समाजों में जाएं और पूछें कि हमारे यहाँ इतनी घृणाएं क्यों हैं, विचारधारा से विचारधारा के बीच में, जातियों से जातियों के बीच में, कई बार भाषाओं से भाषाओं के बीच में, क्षेत्रों से क्षेत्रों के बीच में, लोगों से लोगों के बीच में, काले गोरे के बीच में, स्त्री पुरुष के रूप में, ऐसा क्यों है? ऐसे घृणास्पदता के विभिन्न सोपान क्यों हैं? कौन लिख सकता है? चित्त भाई लिख सकते हैं, कुबेर नाथ राय लिख सकते हैं, एक प्रसन्न गद्यकार लिख सकता है इस बात को, क्योंकि वो समाज की संभावनाओं को समझ करके जो उसका यथार्थ है उस पर भी गहरा प्रहार करता है। वह जानता है कि ये यथार्थ कई बार बनावटी यथार्थ, वो है नहीं उस देश का पारंपरिक, उसको जिस रूप में रचा जा रहा है, जिस रूप में क्रिएट किया जा रहा है, वो गलत यथार्थ है, वो एक फेक रियलिज्म है। उस फेक रियलिज्म के पीछे बहुत से एलिमेंट्स हैं और उन्हीं तत्वों के प्रतिरोध में, उन्हीं तत्वों के सत्याग्रह में, अगर मैं चित्तरंजन दास जी का प्राचीन शब्द लेके कहूं तो हम साहित्य को, समाजों को, व्यक्ति को, व्यष्टि को, समष्टि को बदल सकते हैं, उसका शोधन कर सकते हैं और एक नया मार्ग ला सकते हैं, एक नई सृष्टि कर सकते हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमान चित्तरंजन दास जी, चित्त भाई और कुबेर नाथ राय, इन दोनों रचनाकारों को प्रणति निवेदन करता हूं। अपने प्रिय मित्र प्रोफेसर अनंत कुमार गिरी जी को, रणवीर जी को, मीनाती जी को और अन्य स्वाध्याय मंडल के जो विद्वान सदस्य हैं, सबके प्रति समादर निवेदित करता हूं। नमस्कार और धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे अंतर का पुष्प आपके साथ है और आप इतने गहरे से चित्त भाई और कुबेर नाथ राय की समझा और इनके साथ आप खुद ही एक सष्टा और साधक के रूप से आप भी इनके साथ पथ अतिक्रमण करें और कर रहे हैं। आप बहुत गंभीर एकात्मक के साथ आप बहुत गंभीर आप प्रेजेंट किए हैं। जैसे एक चीज स्वाभिमान और हार्दिक
हार्दिक का। और हम अब स्वाभिमान के बारे में कितना बोल रहे हैं, और इंडियन प्राइड और अस्मिता और सब, और अस्मिता नाम में हम एक दूसरों का गला कट रहे हैं। तो इस पे हार्दिकता कहाँ है? और जो आप बोला चित्त भाई के बारे में कि वो सचमुच चित्तरंजन है, और इनका नाम भी ऐसे आया था। आज तो दिवाली का पहले जो इनके गांव में घर में एक नाटक हो रहा था, और इसमें सब बहुत आनंदित रंजित होकर वो दिख रहे थे, और इस मुहूर्त में चित्त भाई हमारे भूमि के पास आए हैं। सचमुच आप इतने गहरे से, और चित्त भाई आज हमारे साथ उपस्थित है, और वो हमारे साथ उपस्थित है, और साथ साथ हम और बहुत कुछ गंभीर जाएंगे और उच्चतर को जाएंगे। सो मित्रों, भाई और बहनों, हम हमारे परिचय भाई के साथ अभी संवाद करेंगे। हमारे पास अभी कुछ नया भाई बहन है। मैं पहले डॉक्टर ज्योतिर्मयी सेठी को निवेदन करता हूँ, आप 1-2 मिनट लेंगे और आपका चिंतन रखेंगे, और जो बताना चाहते हैं आप चैट बॉक्स में भी इंडिकेट करिए। डॉक्टर सेठी। ओके, इसके बाद डॉक्टर राम गोपाल खुटनी। ओके, सरोजिनी साहू, सरोजिनी अपा। ओके, किशोरी अपा प्लीज, किशोरी अपा। हाँ, सरोजिनी साहू, सरोजिनी अपा आपण अनम्यूट करंतु। ओडिया रे कहबी। ओडिया रे कहले गुटे गीत गाइबा को आज्ञा। गीत तो हबनी मो द्वारा। एटी जिते उपस्थित बुद्धिजीवी को, सार मैडम मान को, बड़ मान को प्रणाम, छोट मान को बहुत बहुत स्नेह। आज गोटे एनालिटिकल भारी सुंदर प्रेजेंटेशन है, तेणु आमर रिसोर्स पर्सन को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा भविष्य में भी आपण माने एमती ऑर्गेनाइज करिवे इन फ्यूचर, जहाँ द्वारा समस्त उपकृत हो। धन्यवाद। आपण कोउटी रहंती अपा? मु राजगांगपुर राउरकेला पाखे। कौन करंती? मु टीचरशिप करे, लास्ट ईयर रिटायर्ड करली। अच्छा, माने आउ एबे मोर साइंस एनवायरनमेंट और एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटी जारी रही छे। बहुत खुशी लागला अपन को कथा सुनला। आई होप परिचय भाई यू अंडरस्टूड दैट हमारे सरोजिनी अपा ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया है, जो एनालिटिकल चीज है, और एनालिटिक के साथ जब हृदय मिल जाता है तो बहुत नई नई चीज सृष्टि होता है। तो अभी किशोरी अपा। ओके, किशोरी अपा इज टेकिंग सम टाइम। जयंती कुमारी। ओके, डॉक्टर तिवारी प्लीज, देवेंद्र तिवारी। Actually, Tiwari is traveling. Okay, so now Randhir please. So much for giving me the opportunity. धन्यवाद। नहीं, हमारे देवेंद्र भाई आगे आगे। यस, देवेंद्र भाई। हेलो। हाँ, रणधीर जी, मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है? क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ। आवाज कट रही है आपकी थोड़ी थोड़ी। तथापि सुन रहे हैं आप, बोलिए बोलिए, एक दो बात सुन लेंगे। So first of all, I would like to say thanks to
Parichay Das sir for for his थोड़ा आवाज कट रहे हैं, फिर बाद में हम सुनेंगे। अभी रणधीर भाई। ओके, आज मेरी भी इंटरनेट थोड़ी स्लो हो गई है। आवाज मेरी क्लियर है? हाँ जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद परिचय दास सर ने जो आत्म गहराई से विश्लेषण किया इन दोनों महान विचारकों का। तो कुबेर नाथ राय जी का जो संकल्पना था चिन्मय भारत को लेके, उसको पूर्णतः साकार करते हैं अपने प्रोफेसर चित्तरंजन दास। और एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते कुबेर नाथ जी के अवलोकन में समाजशास्त्रीय पहलू भी हम देख सकते हैं जब वो पूंजी तंत्र की बात करते हैं और निहित स्वार्थों को लेकर जिस तरह से भारतीयता बढ़ रही है। जब वो कल्पना करते हैं कि हर एक गांव का युवा हृदय में छोटे छोटे बम्बई को लिए हुए है और हर एक युवक जो शहर में है वो अब छोटे छोटे अमेरिका को अपने हृदय में लिया हुआ है। गहरी चिंता है जिसमें हम उस अगर हम लेके अगर समझते हैं तो वो काफी एक गहरी बात कह रहे हैं। तो क्योंकि मैं अभी जस्ट 3-4 दिनों से ही उन पे कुछ कुछ मैं पढ़ा हूँ, उससे एक जो चीज निकल के आती है कि कुबेर नाथ राय जी एक का जो दर्शन है वो बहुलतावादी दर्शन है, जो एक फंडामेंटल फिलोसफिकल दर्शन है हमारे भारतीय का। लेकिन लोग उसको अब एक तरह से नैरो आइडियोलॉजिकल दर्शन जो आज के परिप्रेक्ष्य में बन रहा है उसके ऊपर भी वो एक सवाल खड़ा करते हैं। कुबेर नाथ राय जी एक लेखक के तर्ज पे कभी भी कोई होड़ नहीं रही। यूजुअली होता है कि लोग अपने बौद्धिकता को ये जो होड़ वाली परंपरा है, एक दूसरे को आगे निकलने का सेल्फ ईगो जो जो विचार है कि एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के वजह से आप क्रिटिक है, न कि एक सृजनात्मक क्रिटिक है। तो एक 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 नई तरह का परंपरा का उद्घोष हम समझ सकते हैं कुबेर नाथ राय जी में। और सबसे महत्वपूर्ण आज सर ने बात की कि प्रोफेसर चित्तरंजन दास बच्चों को लेके कितने ज्यादा सेंसिटिविटी। साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि सबसे ज्यादा अगर कोई शोषित होता है तो वो हमारे बच्चे होते हैं। और उसको आप जब एक 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 बड़े साहित्य में एक जगह एक स्पेस देना भी एक तरह से एक 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 जो आपने हार्दिकता को दर्शाता है। और आपकी जो पूरी की पूरी लेक्चर था उसको सुनने के बाद बहुत बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। और हम लोगों का भी एक प्रोफेसर गिरी सर का एक संकल्पना है कि सोशियोलॉजिकल इंसाइट्स को कितना ज्यादा हम साहित्य के दर्शन तक ले जा पाए। और जब तक हम अभी पूरा का पूरा जो वेस्टर्न थियरी और इंडियन रियलिटी के बीच का जो गैप है, उस गैप को हम इस एक 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 माध्यम है कि जब हम भारत के समाजशास्त्रीय दर्शन जिसमें हम न सिर्फ न सिर्फ हम चित्तरंजन दास, कुबेर नाथ राय, जब बल्कि हम
गोदान जैसे साहित्य को या फिर प्रेमचंद्र के साहित्य के साथ हम भारत की एक रियलिटी को हम नए परिदृश्य में सोच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और परिचय दास जी का व्याख्यान काफी अच्छा था, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद भाई रणदीप। परिचय भाई, आपका और एक नाम भी देना चाहिए। जैसे परिचय भाई का एक साहित्यिक नाम परिचय भाई है, सुंदर है। और अभी संध्या आपा, आप ओडिया रे कौन तुम ट्रांसलेट कर देती। संध्या आपा इज टेकिंग सम टाइम। हेलो संध्या समय समस्त मोर प्रणाम भाई। हाँ सुना जाऊ। हाँ संध्या समय समस्त मोर प्रणाम। परिचय भाई को अनेक अनेक धन्यवाद से आज एत कथा आम प्रिय चित्त भाई विषय कहले। तो आम समस्ते जते जन प्राय सदाय चक्र अच्छु भी एबे समस्ते से चित्त भाई गोटे प्रेरणा रे ही अनुप्राणित। से तो अनेक कथा कहले, मु भी चित्त भाई ओडिया बही अनेक पढ़े, विशेषकर शिक्षा उपरे जो चित्त भाई लिखिछंती। आउ माने ताका नामटी भलिया से जहा सहित माने संपर्कित होइछंती बा तांको से परिवेश भितर जे भी आसीचंती, जो मनीष माने आउ जे तांको पढुचंती कि जे माने तांको सुनुचंती, समस्ते तांको द्वारा संक्रमित निश्चित हेइचिबे। माने चित्त भाई एमिति मु जदियो तांको माने फिजिकली बेसी समय देखिनी, थरे दुई थर देखिची, किंतु मते बहुत एमिति भी मनीष दिने पृथ्वी रे संभव ए कथा गुडा आ किछि दिन पर मनीष भाबी भाबी माने कष्ट हुए। ताकर बही माने अनेक बही मु पढिची, प्राय भाईंकर अनेक लेखा भितर सबु किछि पढिनी, तथापि मु भाईंकर 25 खंड बही पढिची चित्त भाईंकर। आ सब गुडा को बहुत भल लागे माने सेटा गुटे उपन्यास पढिला भलिया लागिबनी। जे मनीष को भल पाउथबो, जे हृदय को भल पाउथबो बा समाज को भल पाउथबो, तांको ही तांको कथा गुडा भल लागे, कहानी भलिया लागिबनी। माने गुटे वास्तव जीवन बंचिबार प्रेरणाटा तांकर सबु कथारो मिले। आ जते जण भी आमे चित्त भाईंकर विषय जमाने भी कहउछंती, समस्त से मनीष को से केते भल पाउथले, से पई तांकर सारा जीवन केमिति उत्सर्गकृत होई थिला, से कथाटा समस्त कथार माने मूल क्षय होई रही था। एतिकी कहउची। परिचय भाई बहुत भल लागिला आपण आसिले। अनंत भाई, रणधीर भाई, संतोष भाई, समस्त को संध्या समय प्रणाम रखुछी। धन्यवाद। तो हमारे प्यारे परिचय भाई संध्या आपा बालेश्वर में एक स्कूल में टीचरशिप करते हैं। वो बोले हैं जे जो चित्त भाई के साथ जो मिलते हैं, जो इनका पुस्तक जो अध्ययन करते हैं, इनका द्वारा वो संक्रमित हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद वो महसूस करना थोड़ा कष्ट लगेगा। चित्त भाई जैसे एक आदमी हमारे साथ चलते थे एंड हिज होल लाइफ वाज डेडिकेटेड, उत्सर्ग के जीवन था। तो धन्यवाद संध्या आपा। आउ आम संगे दासरथी भाई अछंती, श्रीजुक्त दासरथी पात्र। ओके, संतोष भाई प्लीज। संतोष भाई, तापरे विपिन भाई, तापरे मिनती अपा। Hello, good evening to everybody. And especially to Richaji. Yes, it was a very nice presentation today, and it was very inclusive also on Chito Bhai, as I have said in my chat box. He has taught many points on Chito Bhai, on his on education and literature.
children's literature and education. Many things he has said on his talk. Actually, it was a very good presentation today. Thank you. Thank you to all. And thank you to Sajid. Thank you, Santosh Bhai. Bipin Bhai. Thank you. Bipin Bhai. हेलो हाँ बिपिन भाई। हेलो शुभचिता हाँ सुना जाऊँ। आप हिंदी में आप हिंदी में बोलिए। आप यूपी में आए हुए हैं, हिंदी में बोलिए। आप मैं लेट से जैन के तो परिचय जी का कोई बात तो ठीक से मैं नहीं सुना है, तो फिर आज यहाँ से जितने आदमी उपस्थित है सभी को मेरा दर्द भरा प्रणाम है। आज चित्ता भाई का जन्मदिन है, तो ये महान व्यक्तित्व का साथ में लास्ट 15 years till his end in the hospital. Up to that period I was with him, and always I was joining with him in the evening. Most of the time in the evening hours we are just joining together and discussing on many issues, many issues. I have seen him in many different situations when there is the communal riots in Phulwani, Kandhamal. During that time, how those children were suffering, that was very much paining him, and many days he was suffering out of that. And we have joined in many classes with him somewhere. Many places I had gone with him. His appealing for humanity and how in his own way, how he could reach to the people, remember their names, and his appealing to the humanity is very much attractive for me, and I have read many of his books. The books, any new book coming out, I was going through it and very much attracted by that and encouraged by his words. He was the person with whom I could laugh very happily with him. Heartfully, I could laugh. After his death, from that period, perhaps I have not laughed so heartily how we are that day doing. तो इसी तरह का पर्सनालिटी वो थे, लेकिन वो जो प्रेरणा हमको दिए हैं वही प्रेरणा के अनुसार हम कुछ काम करना भी जारी किए हैं। वो तो इंटीग्रल एजुकेशन का साथ बहुत जुड़े हुए थे, बहुत सारी स्कूल को जा रहे थे। बच्चे के साथ क्या संबंध रखना चाहे, कैसे बच्चे सब उनका पास सब क्वेश्चन लेकर भेजते हैं, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, इंग्लिश, वो सब का आंसर वो भी इनलैंड लेटर से ये आंसर करके भेज दिया था। उसी तरह से बच्चे का साथ वो जुड़े हुए थे। ये बहुत सारी बात तो उनके बारे में तो कहना को है। और one thing I was just to say how he was very much loving his that some people are saying that he is in favor of globalization like that. In the bed last time, when he was in the bed in the Calling Hospital, he wanted to eat an orange. I was there alone, so I just going to wrap an orange and going to give him. But he saw this orange is
was not Indian. It is from abroad. So then he said that we are telling that we are Indian. हम तो ये जो ग्लोबलाइजेशन को विरोध करते हैं, बोलते हैं ना, तो ये कमला ये जो ऑरेंज है इसको मैं कैसे खाएंगे? So he did not take it. But many people say that he is in favor of that globalization and like so. So how Swadeshi he was in his thoughts. He was wearing that khadi ever. Never any colorful dress. Once I had told him, Chita bhai, I also like to wear like this. So once he saw I was in a colored dress, that is a shirt. Then he said that, oh, you are telling that about that in khadi and like that. You are in this type of dress. So from that period, I also left such type of dresses. And he was such type of man who was encouraged me a lot, how to learn people, how to love people, how to work with the people. So from his inspiration, I am working in the NGO sector. Just now I am in Raigada, in some NGO works here. Thanks to all. This is my all about. Thanks. Thank you, Bipin Bhai. And now we have Dr. Sethi, please. Jyotsnamay Sethi. Dr. Sethi, apna unmute karantu, please. Please unmute yourself. Okay, Dr. Sethi is taking some time. Minati Appa, please. Minati. Hello, yeah, am I audible? Yes. Good evening, everyone, and wish everyone a very happy Diwali. It was a deep, detailed, and enlightening and descriptive presentation, I would say. Joining that Parichaya Das ji was joining every literature and to so many things, so many Odia literature and the psychology behind it. It was really very mesmerizing and very enlightening. Just today, I don't know whether we have time to discuss about the tantric practices of whether it is how it is related to Buddhism or to Shaktism. Like I had read only one book somewhere, so that was not so detailed. So anybody who has a little bit knowledge about that can enlighten us about the tantric practices in Odisha, whether it is about Buddhism or about Shaktism. Like that is the thing. And apart from all his important points, the one was most striking to me was like, going to the grassroots, which Chitta Bhai, actually I have not read much to Kubernath. What he was telling about Chitta Bhai going to the grassroots, it is in personal level, I always believe it is you can, if you are at the grassroots, you can get the real picture of things. Only discussing intellectually in the boardroom and in the these things, that will not help everything. So in that spirit, if time permits, I would like to read 2 poetries for today's occasion. But if time is there, then thank you so much for that. Thank you. We'll listen to your poem after your vote of thanks. Before that, we have Dr. Jyotsnamay Sethi, please. Dr. Sethi. Good evening to all. Can I hear my voice, sir? Yes, please. Please introduce yourself. Yes. Myself, Dr. Jyotsnamay Sethi, lecturer in home science from Baleswar, Odisha से बोल रही थी. अच्छा. जो आज का जो टॉपिक है वो तो बहुत एक्सीलेंट टॉपिक है और जो हमारा जो होस्ट है वो भी बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन दे रहे थे जो कि हमको भी पता नहीं था. तो हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग ओडिशा से हैं भी. तो so that I want to say thanks a lot to our host and co-host, sir. Thanks to all, sir. So in which university you teach, Dr. Sethi? From FM University.
बालेश्वर अच्छा अच्छा, in the department of home science. होम साइंस। So you can put your video on. We would like to see you if you do not mind. यस सर। You can आपनकर video on करंतु. We would like to Okay, sir. meet you. Okay, Dr. Sethi, we cannot see you, but still thank you for joining us. So lovely, we had a lovely evening. Now, Parichay bhai, please, some thoughts from you. Okay, Dr. Sethi, namaste. जी sir. Nice. जी नमस्ते Nice. सर। So we know some I have colleagues. also attend so many webinar program for your organization sir. And Ronbin sir. जी sir. So now you join us, please become part of our family. जी sir. Yeah. So thank you for joining. Welcome. Oh, okay sir. Thank you sir. So now, dear friends, हमारे परिचय भाई आप सुनने के बाद आपका चिंतन रखिए प्लीज। परिचय भाई, रणदीप परिचय लगता भाई, है उनके तकनीकी कारणों की वजह से उनका नेटवर्क शायद कट गया। अच्छा, ओके। So now we will move to vote of thanks. Minati, please. And your poem. Okay. Poem. So from the behalf of Sadhya Chakra, I, Minati Pradhan, wants to thank each and everybody present in the webinar. First, I would like to thank Professor Ravindranath Srivastav ji, whom we call Pyar se Parichay Dasi, for his very enlightening and detailed analytical presentation. I would like to thank our, what you say, I don't know, I cannot say something very professionally for Anant Bhai, but I'll thank Professor Anant Kumar Giri for organizing and doing, means every week giving us some dose of knowledge, organizing such webinars. And I would like to thank Professor Randhir Kumar Gautam for doing and organizing all the things so precisely. So I thank you so much for that. I would like to thank Dr. Davendra Kumar Tiwari, Dr. Sarojini Shahu, Dr. Jasna Sethi, Santosh Bhai, Sandhya Pa, and forgive me if I'm leaving, I'm not able to say somebody's name, and all the participants for joining us and learning together with us. So thank you all. Thank you. And now your poem, Minati. So I was thinking, no, you were asking me to read something in Hindi, but I actually so far have never tried writing a poetry in Hindi. Sometimes 1 or 2 couplets like that I write. I would like to read one poetry in Odia and then another one for English. Is it okay? Sure. That the poetry is about that Sadharana Maniso. I mean that common man, no? Like so that when we are talking about that, I was thinking about that, how to translate things. So it goes like this. So actually, we need to listen to the common man more than the intellectuals. As the former has more practical experiences than the bookish knowledge of the latter. So this is Sadharana Maniso. ମୁଁ ନୁହେଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା, ମୁଁ ନୁହେଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା, ନିଦର ବିଳିବିଳେଇଲେ ବି ପାଲଟିବ ବେଦ। ମୋ ନାମରେ ନାହିଁ ଅନେକ ବିଶେଷଣ, ସାଧାରଣ କଥା ଯାହା ନିୟୁତ ଜନତାଙ୍କୁ କରିବ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ, ଓଲାଇବାର ଭ୍ରମଣକାରୀର ଆଖ୍ୟା, ଆଖି ପୁଚଳାକେ ଖୋଲିଦେବି ସହସ୍ର ଅନୁଭୂତି। ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ ସେ ଗୁଣ,
नहीं आउ थोई पारिबी समस्तंक मनर अजस्र भावना और प्रकृति मु गढ़ाई माटी पानी आउ पवन रे जीवन जंजाल रे आउट पाउट हेउथबा आत्माटिए किछि आत्माटिए किछि नितिदिन जीवनर अनुभूति रे किछि नितिदिन जीवनर अनुभूति रे पाउथिबा जीवन दर्शन किंतु ए चेतना रे उटुबु मन लेखन मन रे खोजुथिबा आलोकर धारा क्षण जळी क्षण लिखुथिबा साधारण मनुष्य थैंक यू and one more hello am I audible Yes. so one more this thing about Diwali one English poetry about Diwali but it is I mean it is very raw form if everybody should pardon me if it does not come up to the mark so it is like Diwali a series of lights to repel darkness of ignorance. It is also about cleaning and decorating, about new clothes, new accounts, gifts and sweets. Did you clean your house only? Or did you remove the stains of bitterness? Wiping out the resentment and unpleasant thoughts to sparkle the place? Oh, I wore a pair of new clothes. It has beautiful colors of new thoughts and habits, a design of positive vibration. I gifted around love as acceptance of as you are in apex. Asked my co-worker to open a new account for new relationships. It is a day to forgive and imbibe empathy and understanding. I distributed and received the sweets of respectful words. I lighted my inner being to spread the light of love and peace around and ignite in everyone the power to be one. Thank you. Thank you. धन्यवाद मिनती এই जो कविता दुईटी these 2 poems साधारण मनुष्य चित्त भाई always invited us to be ordinary but be ordinary in an extraordinary साधारण एवं असाधारण they go together. In Kannada there is a term called Sri Samanya and the idea about a new account for relationship on Deepavali Day is so interesting because Chitta Bhai was always considering relationship as the primary account of life, as the primary capital of life, as the primary consciousness of life. So with this, we dance with light to meet again and let us get ready to meet on Sunday. So we are blessed by the presence of one of the great intellectuals of the world, Dame Professor Marilyn Strathern. She has already sent her poem. Tonight I am sending it to many of you. Please read her paper and we get ready for Sunday. So thank you. Happy Deepavali. Thank you all. धन्यवाद.